तो अब हम आपको ले चलते हैं संभावना स्कूल के जो जुबली हॉल है और स्मार्ट क्लासरूम में। आइए दिखाते हैं हमको स्मार्ट क्लास। And when you go to the sentence, they will find that this is the perfect way to just improve your spoken English. Okay, you can do one thing. You just go through your newspapers. You go to televisions. You started watching English words there, English movies. They just give you new words. After that, what you find? As already I have told you that when you are going to just understand the things, you can see everything is there. We're going to find everything in only language of English. So this shows how it is so powerful, this language, and why it is very, very important in our day-to-day life. Especially, I can give you example of this water bottle. Can anyone see that there is anything in Hindi? Why only English language is there? You tell me, explain this word. Why? See, a simple thing is going to tell you why English is important in our day-to-day life. As we know that this bottle is sold across the world, and if we read only in Hindi, no one would be able to understand it. अगर यहाँ पर हम हिंदी में लिख दें तो अगर जब भी ये बॉटल हमारे देश से बाहर जाता है बेचने के लिए तो वहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंडिया में हो सकता है कि इंडिया में भी नहीं समझ पाए। अगर आप साउथ की कंट्रीज में चले जाए वहाँ पे भी तो चेन्नई, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी ये लोग नहीं समझ पाएंगे। That's all. Concept very clear. I want to only say one thing that people say that why they speak English only. That other verbs to form tense, mood, or voice. These are the auxiliary verbs. Now come, if you see that types of auxiliary verbs, there are two types of auxiliary verbs: primary auxiliaries and the modal auxiliaries. Primary auxiliaries, I have told you, be, have, and do. There are three forms of primary auxiliaries, and these primary auxiliaries have different forms also. Look here, being, is, am, are, was, were, be, being, is. These are the forms of be. And if we continue about the have, has, have, had, having, all these are the form of have. And if we talk about do, does, did, done, doing, these are the form of do. So these are the three auxiliaries, primary auxiliaries, and these are the form of these three primary auxiliaries. And if we talk about the modal auxiliaries, now come. Modal auxiliaries, shall, should, will, would, may, might, can, would, all these are the modal auxiliaries. If you talk about the difference, look here, modal auxiliaries and the primary auxiliaries. First of all, we talk about the modal auxiliaries. First of all. तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो बच्चे हैं शांत वातावरण में क्लासरूम में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो वहाँ पे हमको गिल्टी फील होता था कि we can do the activity of the mounting onion peel से, है ना? आप ओनियन पील से का जो है आप उसकी माउंटिंग जो है टेम्पोररी स्लाइड को जो है मेक करोगे। समझ रहे हैं कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? And after that, take the onion peel just like this happening and cover it with cover slips. And after that, remove the excess dressing with the cutting paper and examine the onion peel under the microscope. And for this experiment. First of all, this is the onion. Yes, It cut in the four parts में आप इसको कट करोगे। That outer part you can take a first of all, and very minute part. तो यह मैं आपको बायोलॉजी की लैब से जो है तस्वीरें दिखला रहे हैं। हाँ, छात्राओं को प्रैक्टिकल बताया जा रहा, दिखलाया जा रहा है। Then after we can make the 2 and the 3 near. And then after we can draw 1 and 2. तो जो है देखिए स्केलेटन है, ऑर्गन्स हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स काम करते हैं। और देखिए फॉर्मल्डिहाइड, it can stay
प्लांट सेल। अंडरस्टूड? लेकिन है कि एनिमल सेल को एक्सटेंड करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते हैं? वेरी गुड। मिथाइल जो है ब्लू का जो है हम लोग यूज करते हैं। जो सैफरन की हम यूज करते हैं तो मेक इट अट्रैक्टिव। चलिए हम नेक्स्ट लैब में चलते हैं। आइए आपको दिखलाते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री लैब है। अब हम आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर ले चलते हैं। देखिए ये बात मैम, ये बताया जाए रेगुलर लैब में बच्चों का प्रैक्टिकल कराया जाता है? हाँ, जैसे रूटीन होती है उससे ये। तो मतलब प्रैक्टिकल जो है उसके लिए क्या क्या मतलब बच्चों को अपना सामान लेकर आना पड़ता है कुछ? नहीं, सारे जो लैब में सारे उपलब्ध होते हैं, बच्चे से नहीं मंगवाए जाते हैं। जो केमिकल्स वगैरह है ये सब कुछ आप लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं? ऐसे ही रखे होते हैं। ये केमिस्ट्री का लैब है, कई बार होता है केमिकल को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसलिए ना टीचर की देखरेख में लैब इंचार्ज होते हैं, उनकी देखरेख में ही होता है। बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। लैब इंचार्ज के देख रेख में होता है, यानी प्रतिदिन प्रैक्टिकल होते रहता है रूटीन के अनुसार। रूटीन के अनुसार। हर एक स्टूडेंट का पर डे होगा, जैसी उनकी रूटीन रहती है क्लास के अनुसार, वैसे उनका प्रैक्टिकल होता है। चलिए आपको हम दिखा दें, ये केमिस्ट्री लैब है और केमिस्ट्री लैब में देखिए जो छात्र छात्राएं हैं वो प्रैक्टिकल अपना करते हुए क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताओगे कुछ प्रैक्टिकल में ये क्या चल रहा है आप लोगों का? तो यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना रहे थे, जिसके लिए अभी जो दूसरा पाँच हम लोग पहले वो डाले और हम लोग उसमें भी पानी मिक्स किया। अभी हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। दिखाओ कुछ कॉपर सल्फेट को किस तरीके से आप लोग दिखलाओ। सर अभी हम लोग मिक्स कर रहे हैं। हाँ। हम लोग इसको बॉईल करेंगे। बॉयल करने के बाद क्या होगा ये? सर इसमें से जो कॉपर है वो निकल जाएगा और जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो बच जाएगा। जो लो रिएक्टिव मेटल है वो निकल जाएगा। चलिए अभी हम देखिए कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालते हैं बच्चे, और यहाँ देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। आप लोग क्या प्रैक्टिकल करो बाबू? सेम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जैसे सीजन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये है। इसको हीट करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट है वो निकल जाएगा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो निकल जाएगा, मेटल पर चिपक जाएगा। और बच जाएगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बच्चे जो है प्रैक्टिकल जो है केमिस्ट्री का अपना करते हुए लैब में। सबसे बड़ी बात है कि संभावना आवासीय उच्च विद्यालय जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर फोकस यहाँ पर होता है तो बच्चों को शिक्षा देने पर फोकस होता है, उनमें संस्कारों का बीजारोपण करने पर फोकस होता है, उसके साथ ही उन्हें तमाम तरह की जो कल्चरल एक्टिविटी है वो भी सिखाई जाती है बस। और अब हम पहुँच चुके हैं जो यहाँ पर मैथ्स का लैब है, वहाँ पर Mathematics day 4.11. It is from chapter quadrilateral. The purpose of this activity is to show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of adjacent sides of any quadrilateral is a parallelogram. For this, we will take a scissor, a paper, and pen or pencil. With the help of ruler on the paper, form any type of quadrilateral, not of any particular quadrilateral, any type quadrilateral. ठीक है? Of any size, you can form quadrilateral of any size. सर ये मैथ का क्या प्रैक्टिकल बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल? मैथमेटिक्स में हमारा एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। जी। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट्स प्रॉपर्टीज
and some axioms and theorems. तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग बता रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है चलिए। तो देखिए हमने क्या किया पेपर पे एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको फिजिक्स के लैब में। चलिए देखिए ये है फिजिक्स का लैब। तो ये है फिजिक्स का लैब। सर अपना बताते हुए। पहले बात कर रहे थे आर्किमिड प्रिंसिपल का। ये कंटेनर है, इसमें पूरी तरह से इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड क्या है कि एक लेवल चलती है। अब ये ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग इनसाइड द लिक्विड प्लेस कर रहे हैं। जैसे ही प्लेस करें इसका लेवल देखो क्या होगा, ऊपर हो रहा है। जैसे जैसे ये जाएगा यहाँ से देखना ये क्या होता है कि यहाँ से देखो ये बूंद बूंद करके पानी के अंदर सूरज यहाँ से वाटर जो है डिस्प्लेस करने लगा। अब जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही वेट ऑफ लिक्विड जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, जिसको हम लोग अलग कंटेनर में, एक हमने यहाँ पे अलग जार लिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर अभी हम लोग करके देखते हैं जिसकी वजह से जार में पानी है तो हम चाहे इसमें डाल सकते हैं वापस, तो फिर से गिर रही है। अब ये क्या है कि अभी नहीं गिर रहा है, गिर रहा है क्या, लेकिन जैसे ही हम सर एक्सक्यूज मी क्या ये बता रहे बच्चों को? सर ये आर्किमिड प्रिंसिपल है और ये क्लास 9 का एक चैप्टर है हमारा फ्लोटेशन प्रेशर एंड फ्लूइड्स में, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं आर्किमिड प्रिंसिपल का। जी आर्किमिड प्रिंसिपल को लेकर के जनरली आजकल की जो लाइफ है हमारी वो बिल्कुल इस पर बेस्ट है, जिसमें हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें इसके प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। आज जो पानी में इतनी इम्प्योरिटीज है तो उसको भी हम मेजर करने के लिए इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। आज सी पे चल रहे हैं सबमरीन, हम लोग हमारी सरकार भी इतने सबमरीन वगैरह बना रही है, वो भी हमारी इसी आर्किमिड प्रिंसिपल पर बेस्ट है। उसी को लोग आज लैब में इसके लेकर के बात कर रहे हैं कि किस तरह से आर्किमिड प्रिंसिपल काम करता है और किस तरह से वेट ऑफ द लिक्विड। सर कुछ बच्चों से बताइए क्या जानकारी है, किस तरीके से आर्किमिडीज के सिद्धांत को ये लोग जाने हैं? इसकी प्रिंसिपल के बारे में आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई बताएगा? पीछे से चलो आओ बताओ क्या है ये आर्किमिडीज सिद्धांत? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि एक वाटर होता है उसको डिस्प्लेस करता है, कोई भी बॉडी आता है उसके अंदर तो उतना वाटर डिस्प्लेस कर, जितना बॉडी का वेट होगा उतना ही वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है। चलो और देखिए ये प्रैक्टिकल से कितना फायदा होता है यहाँ पर आप लोग जैसे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं क्लासरूम में, यहाँ पर प्रैक्टिकल आता है तो उससे कितना फायदा होता है? उससे फायदा हमारा ये होता है जो हम क्लास में बताया जा रहा है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर, मतलब इसका पूरा फायदा रहता है, प्रॉफिट है इसका। तो फिजिकली भी हाँ, जो चीज हम लोग बुक से किए हुए हैं उसको किस तरह से हम लोग लाइव उसको देख सकते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकली संभव है। तो देख सकते हैं कि जो लगातार लैब में जो है बच्चों का अपना क्लास चलता है। उसको लेकर के